हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएलएस प्लेटफॉर्म। आई होप आप पहले के लेक्चर्स पढ़ के आए होंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट with our new lecture, that is lecture number 4, and the topic that we are going to cover in this lecture is saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbon, alkane, alkyne, and also we are going to cover alkene here. एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों कवर करेंगे, प्लस उसके साथ साथ फंक्शनल ग्रुप एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन. So let's start with our chapter today. The first topic, that is saturated hydrocarbon. In the previous lectures हमने क्या सीखा था कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है. अब जो 4 बॉन्ड है वो कैसे होते हैं? कोवेलेंट इन नेचर होते हैं. बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज सैचुरेटेड एंड अदर इज अनसैचुरेटेड. वन इज सैचुरेटेड and the other is unsaturated. Saturated hydrocarbons are those that contain only single bond. Saturated hydrocarbons are those that contain only single bond. What do you mean by single bond? That there is share of only, sharing किसकी हो रही है? One pair of electron from each element. Sharing of one pair of electron from each atom that is combining together to form bond. So that was called single bond. For example, saturated का सबसे अच्छा example है CH4, that is called methane. Methane is called the saturated hydrocarbon because in methane the carbon is attached to the hydrogen by making single bond. This is an example of saturated hydrocarbon in which our carbon is attached to hydrogen by making single bond. Another example for this is ethane, C2H6. This is called ethane, in which the carbon are attached to hydrogen and to themselves by single bond. कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. Saturated hydrocarbons are basically known as alkane. Saturated hydrocarbons are known as alkanes. Their another name is alkanes. Alkanes are basically the saturated hydrocarbon that contain only single bond. Saturated hydrocarbon also, when they are burned in air, when they burn in air, they give a clear flame. When they burn in air, they produce blue flame. What type of flame they produce? They produce blue flame. By blue flame, it means that there is no residue left. There is no residue left after combustion. After combustion, there is no residue left. There is complete combustion of saturated hydrocarbon. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जब आप ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, देयर इज कंप्लीट कंबशन. ऑक्सीडेशन गलत वर्ड यूज हो गया था. देयर इज कंप्लीट कंबशन. दैट्स व्हाई दे ऑलवेज प्रोड्यूसेस ब्लू फ्लेम. क्लियर? एंड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो नोन एज एल्केन्स. नेक्स्ट, कमिंग टुवर्ड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज दैट contain double bond or triple bond. That contain double bond or triple bond. They contain double bond or triple bond. एंड दीज हाइड्रोकार्बन, अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं उन सब में ही डबल होगा, उन सब में ही ट्रिपल होगा, बट किसी एक में डबल या ट्रिपल होगा. अगर एक जगह भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हमारा वो कौन सी कैटेगरी में आता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे कंटेन एटलीस्ट वन डबल और वन ट्रिपल बॉन्ड. फॉर एन एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग इथीन. Ethene is an unsaturated hydrocarbon which formula is C2H4, in which 2 carbon are attached by making a double bond and there are 2 hydrogen on each carbon. As you can see, carbon makes 4 bond. Talking about this carbon, 1, 2, 3, 4. Stable.
Talking about now this carbon, 1, 2, 3, 4. Again stable. Ethene is a unsaturated hydrocarbon that is made by making double bonds. Clear? Now let's take an example of ethyne. Ethyne is also an unsaturated hydrocarbon whose formula is C2H2, in which the carbon are attached to themselves by making triple bond between them and as bond with hydrogen. When I am talking about this carbon, so 1, 2, 3, 4. 4 bonds. This carbon is stable. Talking about this carbon, 1, 2, 3, 4. Again 4. This is also stable. The unsaturated hydrocarbon, they contain a double bond or a triple bond. It is not necessary that all the atoms should contain double or triple. बच्चा क्या सोचता है कि unsaturated है, that means कार्बन कार्बन के साथ भी डबल होगा, हाइड्रोजन के साथ भी डबल होगा, इसके साथ भी डबल होगा, जिसके साथ भी जुड़ रहा है डबल होगा. वो गलत कंसेप्शन है. हर एक के साथ डबल बॉन्ड नहीं होता है उसका, किसी एक के साथ उसका डबल बॉन्ड होगा. अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आता है. इनको बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, दे आर कॉल्ड एज एल्कीन्स. एंड जिनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, they are known as alkynes. जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है they are called as alkanes, जिसमें डबल बॉन्ड होता है they are called as alkenes, and जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है they are called as alkynes. Clear? Coming toward the combustion part, कि what about the combustion? Like we discussed about the combustion of alkane, that alkane burns with a blue flame. Then what is the type of combustion of these unsaturated? Basically unsaturated, they do not give clear flame. Unsaturated, when react with oxygen, they do incomplete combustion. What do you mean by incomplete combustion? That flame is not blue, flame will be yellow, red, and along with this there will be some residue left. There will be some residue left. There will be some residue left behind. All the hydrocarbon will not get burned in unsaturated. There will be some residue left behind, and they do not give blue flame. They burn with a yellow flame that shows the sign of incomplete combustion. Clear? Coming toward the next slide, that is alkane family. Now we have discussed earlier that alkanes are those that contain single bond. Alkane are those that contain single bond, and they perform and they show complete combustion. They show complete combustion. Clear? Alkane are those that shows complete combustion. Talking about the general formula of alkane, the general formula for alkane is CnH2n plus 2. Here n can be any integer, any positive integer. Negative नहीं होगा, कैसा होगा? Any positive integer, and here represent any positive integer. For example, let's say n की value 1, so the formula will be CH4. N की value 2, the formula will be C2H6. N equal 3, the formula will be C3H8, and so on. Clear? Now we are talking about now we have to discuss about the naming of these, कि एल्केन की नेमिंग कैसे होती है. तो एल्केन की नेमिंग के लिए याद रखेंगे, लास्ट में एन लग जाएगा. लास्ट में क्या लगेगा? एन लग जाएगा. For n is equals to 1, we use meth. For n is equals to 2, and here represent number of carbon, we use eth. For n equal to 3, we use prop. For n is equals to 4, we use but. For n is equals to 5, we use pent. N is equals to 6, hex. N equal to 7, hept. N equal to 8, oct.
n is equal to 9, we use non, and for n is equals to 10, we use dec. These are the number of carbons and their name that we are going to use. For n equal to 1 meth, n equal to 2 eth, n equal to 3 prop, n equal to 4 but, then pent, hex, hept, ऑक्ट, नॉन, डेक. इसके आगे अपने सिलेबस में नहीं है, हम इतना ही करेंगे. अब बात करते हैं इनकी कि फॉर n इज इक्वल्स टू 1 व्हाट विल बी द नेम. n इज इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ कार्बन इज 1, we will use meth, and since it is alkane, methane. The name of this gas CH4 as told by me earlier was methane. अब कैसे आया, समझ में आया. नंबर ऑफ कार्बन 1 है, एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है. नंबर ऑफ कार्बन 1 मिथ, एल्केन फैमिली एन, मिथेन. अगर n इज इक्वल्स टू 2 है तो फॉर्मूला विल बी C2H6, द नेम विल बी इथ एन. n इक्वल टू 3 है, फॉर्मूला विल बी C3H8, द नेम विल बी prop एन, एंड सो ऑन. क्लियर हो गई बात. तो अगर हम बात करते हैं तो व्हाट विल बी द नेम्स ऑफ द एल्केन फैमिली, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, तो क्या क्या नाम आ जाएंगे. सबसे पहला मेंबर हो जाएगा इसका मिथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन. आपका काम क्या होगा, घर पे बैठ के आप इनके फॉर्मूलेज लिखेंगे. फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला है CH4, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H10. और फॉर्मूले के साथ साथ बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना के देखेंगे कि बैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, या फॉर्मूला सही बन रहा है नहीं बन रहा. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अबाउट लेट्स से C3H8 प्रोपेन, तो मैं 3 कार्बन बनाऊंगा. अब कितने हाइड्रोजन चाहिए मेरे पास, 8 हैं. कैसे प्लेस करूंगा, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, दैट कार्बन इज गेटिंग स्टेबल और नॉट. याद रखना कार्बन स्टेबल कब है, जब 4 बॉन्ड बनाए. 4 बॉन्ड से कम बनाया स्टेबल नहीं, 4 से ज्यादा बनाया तो भी स्टेबल नहीं, 4 में स्टेबल है. तो इस वाले कार्बन ने 1 2 3 4, ये भैया स्टेबल. इस वाले ने भी 1 2 3 4 स्टेबल, ये भी 1 2 3 4 स्टेबल. दिस इज द स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेन. तो आपका घर पे क्या काम है, आप घर पे इन सबके बनाएंगे एंड इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे. क्लियर हो गई बात. एल्केन सबको समझ में आया. अब बात आती है एल्काइन के बारे में. एल्काइन से पहले मैं यहां पे बात करना चाहूंगा एल्कीन के बारे में. आई एम टॉकिंग अबाउट एल्कीन. एल्कीन जनरल फॉर्मूला, एल्कीन कौन से होते हैं, डेट कंटेन डबल बॉन्ड. एल्कीन कौन से होते हैं, डेट कंटेन डबल बॉन्ड. और अभी भी बोल रहा हूं डबल बॉन्ड पूरे के ऊपर नहीं है, किसी भी एक में आ गया तो एल्केन है. हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है. एंड जनरल फॉर्मूला होता है इनका CnH2n. सबसे पहला मेंबर हम कोशिश करते हैं C1H2 डालने की, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि मिथीन लिखें. बट एज यू कैन सी कार्बन इज मेकिंग ओनली सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन. अगर बच्चा सोचता है कि सर कार्बन ये भी तो कर सकता है कि वो ऐसे बनाए कि 2 और 2 4 स्टेबल हो गए, बट सामने वाले की भी तो देखिए वैल्यू, सामने वाला हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन तो कभी डबल बॉन्ड बनाता ही नहीं, वो तो सिंगल बॉन्ड बनाता है. तो इसीलिए याद रखेंगे कि सबसे पहला मेंबर मिथीन नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, मिथीन पॉसिबल नहीं है. एल्कीन का जो सबसे पहला मेंबर होता है दैट इज इथीन. इथीन नाम से समझ आ रहा है, इथ यानी कि 2 कार्बन, फॉर्मूले के अंदर 2 डाला C2H4 आया. स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, स्टेबल हो रहा है. इथीन के बाद नंबर 3
नंबर 3 के लिए हम क्या यूज करते थे, प्रोप, और एल्कीन के लिए हम लास्ट में लगाते हैं इन, तो प्रोप इन, तो हमारा C3H6 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, 3 कार्बन, 1 2 3, और किसी भी एक कार्बन पे हम लगाएंगे डबल बॉन्ड। तो ये देखिए अब वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेंगे, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहां बनाए, मतलब एक यहां बनाएगा और एक यहां। अब इसने 3 बना दिए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये बस एक चाहिएगा और इसको 3 चाहिए होंगे। लेट्स सी नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे सही है, 1 2 3 4 5 6, एंड ये रहा C3H6। क्लियर हो गई बात। एल्कीन में याद रखेंगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड सिर्फ एक में। बच्चे क्या सोचते हैं, यहां पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, यहां पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, तो उसमें 2 डबल बॉन्ड होगा तो 2 इन यूज होगा। क्लियर हो गई बात। डाई इन, ट्राई इन, अगर 2 यूज होता है तो हम डाई इन लिखते हैं, 3 यूज होता है तो हम ट्राई इन लिखते हैं। क्लियर। बट अभी हमारा प्रोप इन था, सिंपल एक डबल बॉन्ड है, तो हमने एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया है। तो जब हम इनकी फैमिली की बात करेंगे तो एल्कीन फैमिली, जनरल फॉर्मूला समझ में आया, CnH2n। तो इसकी जब हम फैमिली की आगे बात करेंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द एंटायर फैमिली। सबसे पहला हो जाएगा इथीन, मीथीन नॉट पॉसिबल इन एल्कीन, इथीन, देन प्रोपीन, देन ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ऑक्ट के बाद नोनीन एंड डेकीन। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को डेकीन का लिखना है, नंबर 10 डाला, C10H20, तो जब मैं C10 बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 1 10 बन गए। अब इन है, एक डबल बॉन्ड लगा दो, तो या तो यहां लगाओ या यहां, बेहतर रहेगा आप इधर लगाएं, और आप बीच में भी लगा सकते हैं, पर बीच में लगाने से क्या होगा, हम उसकी नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन का मतलब है, अगर मान लो मैंने इस वाले कार्बन पे लगाया तो मैं 1 2 3 4 मैं लिखूंगा डेक 4 इन, क्योंकि मैंने पोजीशन बताई कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड, 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड। यहां पर बस मेरा डेकीन था, तो डेकीन से क्या फायदा हुआ, डेकीन से फायदा ये हुआ कि मेरे पास जो डबल बॉन्ड आए वो कैसे आए, सिर्फ एक में डबल बॉन्ड आया। सबको क्लियर हुआ। अब हमने एल्कीन का पढ़ा, सेम काम आपको करना है, जैसा हमने एल्कीन में किया वही काम आपको एल्कीन में करना है। मेंबर्स के नाम लिखेंगे फैमिली के, उनका फॉर्मूला लिखेंगे, उनका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि कार्बन स्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा, 4 बॉन्ड बन रहे नहीं बन रहे। क्लियर हो गई बात। अब आगे बात करते हैं विद द एल्काइन फैमिली। एल्काइन फैमिली कौन सी होती है, डेट कंटेन, एल्काइन कौन से हैं, डेट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। ये कैसे बॉन्ड कंटेन करते हैं, दे कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गई बात। एल्काइन फैमिली कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। अगेन मिथाइन नॉट पॉसिबल, मिथाइन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा सबसे पहला मेंबर इसका आता है इथाइन। फॉर्मूले में n की जगह जल्दी से 2 डालिए, तो फॉर्मूला विल बी C2, 2 2 4 -2 C2H2। अब बनाते हैं, 2 कार्बन बनाइए। अब आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। याद रखेंगे एल्काइन के लिए लास्ट में YNE लगता है। ऐसे ही सेकेंड मेंबर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोप आइन, प्रोप वाइन। क्लियर। तो ये हो जाएगा C3H, 3 2 6 -2 4। तो ये कैसे होगा, 1 2 3 और एक पे ट्रिपल बॉन्ड। अब इधर देखो, इस वाले कार्बन को तो एक चाहिए, इस वाले कार्बन को कोई भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 3 और 1 4 ये स्टेबल है, तो ये इधर आएंगे। क्लियर हो गई ये बात। ऐसे ही हमारे आगे मेंबर्स आएंगे। आपका काम क्या है इसका, इसके पहले मेंबर्स लिख लेते हैं, फिर उसका काम सेम रहेगा। सबसे पहला मेंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला मेंबर हो जाएगा इथाइन
then propyne, then butene, pentyne, hexyne, heptyne, octyne, nonine, डेकाइन। क्लियर? लेट से मेरे को नोनाइन का स्ट्रक्चर लिखना है, एन की वैल्यू नोनाइन यानी कि नॉन यानी कि 9, एन की वैल्यू 9 डालेंगे, C9, 9 2 18 माइनस 2, H16। आपका काम सेम है, इथाइन से लेके डेकाइन तक आपको क्या रखने हैं घर पे, नाम लिखेंगे, फिर उनका फॉर्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला। एल्केन का बता दिया CnH2n+2 होता है, एल्कीन का बता दिया CnH2n-2 होता है, वो H2n होता है, CnH2n एल्कीन का, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। फॉर्मुलेज बता दिए, घर पे बैठ के एक ही काम करना है, नेम, मीथेन, मीथेन, इथेन, एल्कीन फैमिली हो गई, इथाइन, प्रोपाइन, एल्काइन, एल्कीन फैमिली हो गई, एल्कीन की हो जाएगी मीथीन, वो सॉरी इथीन, प्रोपीन एंड इथाइन, प्रोपाइन, एल्काइन की फैमिली हो गई। पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है, नंबर 10 तक नाम के साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे और उनका फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? आज का काम घर का समझ में आया। अब घर का काम तो हो गया, अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से, मान लो मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब आई, दिस इज टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब बी, और मैंने दोनों में हाइड्रोकार्बन डाल के दे दिए। अब हाइड्रोकार्बन खुद तो चिल्ला के नहीं बोलेगा कि भैया मैं हूं एल्केन या मैं हूं एल्कीन या मैं हूं एल्काइन, ना ही वो एक तुम्हें एक पर्ची देगा निकाल के कि मैं हूं CnH2n+2 का फॉर्मूला सही लग रहा है या CnH2n का लग रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन? बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड की एंड अनसैचुरेटेड की, तो पहला टेस्ट तो हमें समझ में आ गया कि भैया थोड़ा सा कंपाउंड लो, फ्लेम के ऊपर लाके रखो, अगर ब्लू फ्लेम आ रही है सैचुरेटेड, ब्लू नहीं आ रही तो अनसैचुरेटेड। क्लियर हो गई बात? एल्कीन एंड एल्काइन का फर्दर टेस्ट है, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी बस मैं बात कर रहा हूं कि हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में याद रखेंगे, अगर ब्लू फ्लेम आ रही है सैचुरेटेड, ब्लू फ्लेम नहीं आ रही अनसैचुरेटेड। ये बात तो क्लियर हुई। बट लेट्स से मेरे पास फ्लेम टेस्ट बहुत पुराना हो गया, केमिकली आजकल मिक्सिंग हो जाती है और फ्लेम में मेरे मान लो थोड़ा बहुत चेंज आ गया, ठीक है। पुराने का मतलब ये है कि बहुत पुरानी टेक्निक हो गई है, बार बार बच्चे एक ही फ्लेम टेस्ट फ्लेम टेस्ट फ्लेम टेस्ट, हम लाते हैं कोई नई टेक्निक, तो वो होती है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर सैचुरेशन, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ब्रोमीन वाटर को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। याद रखना, तुमने सैचुरेटेड में ब्रोमीन वाटर डाला तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड में ब्रोमीन वाटर डालोगे इट डीकलराइजेस। ब्रोमीन वाटर डालने से क्या होता है? ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज हो जाएगा अनसैचुरेटेड में डालने से, क्योंकि ब्रोमीन जाके डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा, उस टाइम पे वो कलर चेंज हो जाएगा। ब्रोमीन अटैक करता है, दैट्स वाई। अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जब अब आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें बात करेंगे। तो याद रखना, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पेपर में बोर्ड्स में लिखने को आता है और एनटीएससी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ब्रोमीन वाटर इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सैचुरेटेड नहीं देगा, अनसैचुरेटेड देगा। क्लियर? कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली हमारे पास, अभी हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन में कि एक कार्बन होगा, लेट्स से CH4, सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन लेता हूं, दैट इज कॉल्ड मीथेन, ठीक है। अब मेरे पास इसमें 4 हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अब इन 4 हाइड्रोजन में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बाय एनी अदर ग्रुप, तो दैट इज कॉल्ड, हमारे पास जो नई फैमिली आएगी वो एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की बनेगी। अगर मेरा OH आ रहा है तो वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया,
अगर CHO आ रहा है अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया, COOH आ रहा है अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया, मतलब दीज हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर ग्रुप्स, और जो वो अदर ग्रुप्स आते हैं दे आर कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप्स। वो किस तरीके से, हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। अगर OH रिप्लेस कर रहा है तो उसका नाम अलग होगा, उसकी फैमिली अलग बनेगी। अगर हमारे पास एल्डिहाइड आया CHO तो उसकी फैमिली अलग बन रही है, कार्बोक्सिलिक आया उसकी फैमिली अलग बन रही है, क्लोरीन आया उसकी अलग। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। याद रखेंगे हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं इसमें, तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेलोजन, हेलो ग्रुप जिसको बोलते हैं। हेलो ग्रुप वो होता है जब हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन। इन सबको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। हमने अभी पिछले लेक्चर में जब फॉर्मेशन ऑफ Cl2 देखा था तो उसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, इवन फॉर्मेशन ऑफ HCl में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। इन सब के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए चाहिए। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को उठाया खुद लग गए, तो उसको बोलते हैं हेलो फैमिली, हेलो ग्रुप। क्लियर। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकेंड ग्रुप हमारे पास आता है एल्कोहल। जो एल्कोहल ग्रुप होता है दैट इज बेसिकली व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH, व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH। हमने पिछली वीडियोस में देखा था ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड बनाने हैं। अब ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना लिया, दूसरा बॉन्ड वो कार्बन के साथ बनाता है, हमारा हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो जब OH आता है दैट इज कॉल्ड एल्कोहल ग्रुप। जितने भी एल्कोहल्स हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, उन सब में एक OH ग्रुप अटैच जरूर होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिथेनॉल, CH3OH। क्लियरली एज यू कैन सी 3 हाइड्रोजन थे, चौथा हाइड्रोजन को हटा के OH खुद आ गया, दैट इज कॉल्ड आवर एल्कोहल ग्रुप। क्लियर। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप दैट इज थर्ड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड नाम पहली बार सुना है, बट जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे पढ़ते जाएंगे बहुत फेमिलियर होंगे इस नाम से। एल्डिहाइड इज बेसिकली CHO। अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के दिखाऊं तो इट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। दिस CHO ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। CHO यानी कि ये देखो कार्बन कितने बना रहा है, 4 बॉन्ड बनाता है, 2 तो ऑक्सीजन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड बचा वो हाइड्रोकार्बन के साथ बनाता है। जैसे सबसे सिंपल सा इसका है इथेनॉल लिया मैंने, इथेनॉल यानी कि कार्बन कार्बन H H H, और इसने इस वाले कार्बन का H लगा के खुद लग गया। जब नेमिंग करेंगे तो दोनों को लेते हैं, नेमिंग बाद में सिखाऊंगा, अभी बस समझिए कि एज यू कैन सी कि इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। बच्चा सोच रहा होगा इसकी नेमिंग मिथेनॉल होनी चाहिए थी क्योंकि भाई एक ग्रुप और दूसरा ये आया है, बट इथेनॉल होती है। नेमिंग बाद में सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो याद रखना एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO। अभी हमारा मोटिव है फंक्शनल ग्रुप के साथ देखना कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, उन्हें जानना। नेमिंग इज नॉट द मोटिव राइट नाउ, नेमिंग नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। नेक्स्ट फोर्थ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज बेसिकली COOH और वी कैन से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH। ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो ये एसिड बनते हैं दे आर कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी सेम हमारा रहता है कि कार्बन जो कार्बोक्सिलिक का ये जो कार्बन है ये हमारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और स्टेबल बना देता है। क्लियर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान देख लीजिए, या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ कीटोन। जो कीटोन होता है वो हमारा CO, बस ऐसे लिखा होगा, या फिर इसको जब मैं स्ट्रक्चर को बनाऊंगा तो ये इस टाइप का होता है, C डबल बॉन्ड O, और इधर यहां पर मेरा कार्बन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अटैच है डबल बॉन्ड, वो इधर भी बॉन्ड बनाना चाहता है, इधर भी बॉन्ड बनाना चाहता है।
अब कीटोन के बारे में एक चीज याद रखना, कीटोन कभी भी एंड में नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एंड पे लगेगा तो इसको यहां पे कोई ना कोई चाहिए होगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। लेट से हाइड्रोजन आ गया तो एल्डिहाइड बन गया, OH आ गया तो कार्बोक्सिलिक बन गया। बट अगर आप कीटोन को कीटोन रखना चाहते हैं कि वो अपना बिहेवियर चेंज ना करे, तो वो बीच में लगता है। कीटोन कभी भी ना फर्स्ट पोजीशन पे लगता है ना एंड पे, वो बीच में लगेगा। अगर 4 मेंबर की रिंग है तो ना वो फर्स्ट पे लगेगा ना वो लास्ट में लगेगा, वो सेकंड या थर्ड पे लगेगा। 5 मेंबर की रिंग है तो ना फर्स्ट पे लगेगा ना लास्ट में लगेगा, वो सेकंड थर्ड फोर्थ पे लगेगा। क्लियर हो रही है बात? और इन तीनों के लिए याद रखना, जितने भी ये C डबल बॉन्ड वाले हैं, दीज ऑल, इनको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। दे आर कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। इनका नाम क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। याद रखेंगे। एक मिनट, ये क्लियर नहीं है, इसे हटा देता हूं। इनका नाम याद रखना है, दे आर कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। फॉर फ्यूचर स्टडीज 11th 12th कार्बोनिल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब 12th क्लास में आएंगे, 11th क्लास में आएंगे, 11th में तो इतना नहीं पढ़ेंगे। 11th में बस आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन। बट जब आप 12th में आएंगे तो 12th में आते ही आपको दिखेगा कि हमारा पहला चैप्टर हेलो एल्केन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दूसरा चैप्टर एल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। तो मतलब जितने भी आप फंक्शन पढ़ रहे हैं उन सबका एक एक चैप्टर आ गए जिनको आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिक क्लियर होने जरूरी है। क्लियर हो गई ये बात? नाउ कमिंग टूवर्ड्स, हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना था। अब हम बात करते हैं थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन की। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मीथेन इज इनसॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स? ऑप्शंस आर ईथर, एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर। हमारे पास क्वेश्चन आया मीथेन किसमें इनसॉल्युबल है। अब सॉल्युबिलिटी के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक रूल बताया था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का रूल था कि लाइक ऑलवेज डिसॉल्व्स लाइक। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी कि जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। क्लियर? ईथर में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसमें तो सोल्यूबल होगा। एल्कोहल में भी सोल्यूबल, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी सोल्यूबल, बट वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। द ऑप्शन इज डी। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो क्लियर, सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो जाता है, कॉपर सल्फेट ब्रेक हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक हो जाता है, शुगर ब्रेक नहीं होता है। द आंसर इज शुगर। सेकंड का आंसर क्या है हमारा? शुगर। क्लियर हो गई बात? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड ड्राई आइस? ड्राई आइस किसको बोलते हैं हम? ड्राई आइस बोलते हैं हम CO2 को। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसके बारे में बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन C2H4। अब ध्यान से देखेंगे, C2H4 है, हमने अभी पढ़ा। बना के देख लेते हैं, पढ़ने का भी छोड़िए, हम बना के देखते हैं। 2 कार्बन लगाइए, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये तब स्टेबल है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए कितना, क्या नाम याद था? 2 कार्बन यानी कि 8th, और डबल बॉन्ड यानी कि ईन। सो द ऑप्शन इज इथीन। क्लियर? द ऑप्शन इज इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला C6H13। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। C6H13 किसी भी फॉर्मूले को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अब बच्चा बोलेगा कि ऑप्शन में क्वेश्चन में गड़बड़ी है। अगर हम बात करते हैं एल्कीन की, 6 कार्बन के लिए तीनों के लिए फॉर्मूले लिखते हैं। फॉर एल्कीन द फॉर्मूला विल बी C6H14। फॉर एल्कीन the formula will be C6H12, and for alkyne the formula will be C6H10। अब बच्चे के हिसाब से C6H13 तो किसी में भी नहीं आ रहा, तो मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ी है ना? क्वेश्चन सही है।
अगर तुम एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो बन जाता है एल्काइल। याद रखेंगे, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो वो क्या बन गया, एल्काइल बन गया। एल्काइल ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा डी ऑप्शन, द ऑप्शन इज डी। याद रखना, अगर एक कार्बन हटा दिया तो वो एल्काइल बन जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया एल्काइल बन गया। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मलिन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डैश। क्वेश्चन है फॉर्मलिन किसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। लर्न करने वाला है, फॉर्मलिन इज बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इज अ ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। क्लियर हो गई ये बात। कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अनसेचुरेशन। किस किस में करेक्ट ऑर्डर ऑफ अनसेचुरेशन है। तो सबसे पहले एल्केन में कम होती है, देन एल्कीन, देन एल्काइन। ऑप्शन ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ अनसेचुरेशन, यानी कि पहले सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। ऑप्शन ए ही दिख रहा था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन सबसे सामने ही दिख रहा है, CH4 कंटेनिंग ओनली वन कार्बन। सबसे सिंपल वो जो सबसे छोटा हो, CH4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के थे, अभी हमने पढ़ा था, पोलर एंड नॉन पोलर। लास्ट क्लास में पढ़ा था, पोलर नॉन पोलर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के थे, एक था हमारा पोलर और दूसरा था हमारे पास नॉन पोलर। तो पोलर कोवेलेंट कौन सा होता था, जिसमें चार्ज सेपरेशन पॉसिबल होता था। चार्ज सेपरेशन कैसा होता था इसमें, चार्ज सेपरेशन इज पॉसिबल। जबकि नॉन पोलर में देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, कोई चार्ज सेपरेशन इसमें नहीं है। क्लियर हो गई बात। सो द ऑप्शन इज बी। कमिंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर स्लाइड, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने O2 का बनाया था, डबल बॉन्ड बन रहा था। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। इसने इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करे थे, इसने इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करे थे, सो द बॉन्ड वाज डबल बॉन्ड। क्लियर हो गई है बात। आज का लेक्चर सबको समझ में आया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में और हम थोड़ी सी बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। अगली क्लास तब समझ में आएगी अगर आप प्रीवियस क्लास का पढ़ के आएंगे। तो प्लीज पढ़ के आना और रिवाइज जरूर करके आना, और जो आज होमवर्क दिया है वो जरूर करके आएंगे सारे बच्चे। हर एक फैमिली का नाम लिखेंगे, उसका लिखेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला एंड उसके बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर। थैंक यू बेटा।